Hello, my dear students. Welcome back to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. आई होप जो अभी तक आपने जितने भी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा है वो सब आपने इजीली अच्छे से रिवाइज किया है, इजीली समझ भी लिया है. नाउ आज हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर करेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ को आज हमें पूरा अच्छे से स्टडी करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं और उसको इतना अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है कि फ्यूचर में कभी भी हमको स्पीड टाइम ग्राफ मिले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, तो वेलकम बैक. हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ओलंपियाड्स की और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस की. हम लोग क्या क्या कवर अप कर रहे हैं? 6, 7 एंड 8 ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस. और इस दौरान जो आपका टीम मेंबर्स आपको हेल्प करें, हमारे टीम मेंबर्स जो आपको हेल्प करेंगे वो यहाँ है. ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं. एंड द थिंग अबाउट दिस इज यू मस्ट डू इट बिकॉज ऑब्वियसली आपको इससे बहुत एक अच्छी हेल्प मिलेगी. आपके स्कूल एग्जामिनेशन में तो आप अलग से स्टैंडर्ड हो ही जाओगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, प्लस आप अच्छे से ओलंपियाड्स को भी क्रैक कर पाएंगे विद अ वेरी गुड रैंक. So it is beneficial to watch this video obviously, and it's beneficial to connect with us. Just do it, subscribe it, share it. All right, and if you want any sample study material you can get it on our TTB channel. You have to subscribe this our TTB channel on the Telegram app. You can have it according to your classes. For example, this class is for class this lecture is for class 8. So your code will be TTB08. There you have to find us, connect with us. All right. And the most important thing I want to tell you is that we have bring you a package, a whole package of the for the preparation of the Olympiads and school examinations. In that packages, you can access that packages on this website, www.talkingtextbooks.in. all right, you have to write this website on your web browser, then you will be forwarded to our page, and there you can access such types of various types of packages there. You can have them, you can check out which features you will like to have, which features you don't like to have. You can choose those packages from there. An example of that package is shown here. Here you will be getting comprehensive study material, which is a must before starting your preparation. That's a very good thing, or very we can say the very first step you can take towards your preparation is that getting that study material. All right, and recorded and live classes by the TTP experts is a very must, because obviously you can have doubt towards some topics or some, we can say, subtopics or very small things. So you can go back, see the recorded lectures, and you can have your doubts solved. Homework tracking is crucial because some students do not do their homework. They must be getting homework regularly. That's why they have to be checked regularly. So this is one of the features you will be getting. Daily quizzes is a must to know which thing you are lacking in and which is your strongest part. These are the things you must know about you. And the sample test papers or the test papers according to the pattern of the Olympiads and you will be fighting on. All right, so what you have to do is to click buy on. When you will click on the buy now, you will be forwarded to this page. Now this is the thing you must know, because this package is of 9,000, you can see right there. All right, but this packages can be for 6,300 if you write this code CYLIVE, CY live. If you write this code, then you will be getting 30% bonus, and that will lead you to 6,300 package. You have to click buy package, and then you will be forwarded on the payment options. You can choose those payment options according to your need. All right, now if you have any query regarding the thing, how to choose, how to buy something, you can call us or contact us on this number. You can have various details from there too. All right, now the thing is we are continuing mathematical tools. All right, we are studying, we have already studied various types of graphs, trigonometric functions, and scalars and vectors. All right, and this is the last one because we are studying the speed time graph. That will be the end, and then you will be getting questions for your revision and for your practice. All right, so let's see what we are going to do. First, just take out your notebooks, your pens, your papers, and then promise to yourself you will be watching the whole lecture, you will be revising it on daily basis, and you will properly note everything down, because notes are the very good thing if you want to crack any examination. All right, so let's move on. These are the scalars, vectors we have already studied.
Right, and then we have studied what functions, angles, positive, negative, trigonometric functions, and then we are coming on our graphs. All right, so this is the thing. So here on distance time graph, distance, now displacement thing coming on. All right, now let's see the speed time graph. Okay, the speed time graph. First of all, we need to know what speed time graph telling us. All right, so the thing is, speed time graph represents the speed of a body at different times. हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है एक्चुअली में हमें वो क्या बता रहा है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बॉडी का स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी, स्पीड टाइम ग्राफ से मिलेगी। ठीक है, अभी तक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख चुका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख चुका है और हमने ये भी देख लिया है कि हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, अब हमने उस बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। ये है ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और दैट इज द थिंग। यहाँ पे देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड है 0 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पर भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पर भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड पर भी ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स 5 सेकेंड्स के इंटरवल में, मतलब 0 से 5 सेकेंड तक के इंटरवल में इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जब कभी भी वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट मीन्स जो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पर होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रह जाती है। जैसे हमने जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था तब हमने बोला था कि जब कभी भी ये लाइन पैरेलल होगी किसके, टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगी, तब हम बोलेंगे डिस्प्लेस जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा और तब हमें ये सेम ग्राफ मिला तब हमने ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। इसी तरीके से ये सेम ग्राफ हमें स्पीड और टाइम ग्राफ में भी मिला है। तो जब हम इस चीज़ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्पीड भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हम बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए बोल सकते हैं, दैट मीन जब कभी वेरी नहीं हो रहा है, कोई चीज़ इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे इस कैटेगरी में भी ले सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे, बिकॉज जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम जब बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, सेम डिस्टेंसेस कवर्ड इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, दिस शोज व्हाट द यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इफ अ बॉडी इज मूविंग। ऑलराइट, जब कभी भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है दैट मीन्स वो हर एक सेकंड पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है या फिर हर एक आवर पे वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज मोशन में है। और यही सेम ग्राफ हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए शो कर सकते हैं, किसके लिए, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। ऑलराइट, तो अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब पहली चीज़ तुम्हें क्या बोलना है इस ग्राफ को देखते ही, इसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सकते हैं वो ये नोट कर सकते हैं। नंबर 1, दैट स्पीड इज कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बोलेंगे स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, और सेकेंड थिंग हम लोग ये बोल सकते हैं दैट मोशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म। मोशन इज यूनिफॉर्म। इस ग्राफ से तुम दो चीजें इंपॉर्टेंटली नोट कर सकते हो। ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब हर बार वो सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली बात है, ये तो हम देख ही पा रहे हैं कि स्पीड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के डिपेंडेंट में वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज द थिंग यू नीड टू नो अबाउट दी स्पीड टाइम ग्राफ जब स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अदर वन. The other one is speed time graph of a body moving with increasing speed at constant rate. What if the speed is increasing? ठीक है, वो भी कैसे, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, इसका मतलब कि वो इस तरीके से बढ़ रही है। जब 1 सेकेंड था तो स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, जब 2 सेकेंड हुए तो स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, जब 3 सेकेंड था तो स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, जब 4 सेकेंड था तो स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, जब 5 सेकेंड था तो स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हर एक सेकेंड के साथ उसकी स्पीड भी 1 से इंक्रीज हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात क्या हो गई, वो ये कि जब कभी भी कोई भी बॉडी इंक्रीज करती है अपनी स्पीड को कांस्टेंट रेट पे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, बट इंक्लाइंड होती है वो किसी न किसी एंगल पे। ठीक है ना, ये एक इंक्लाइंड एंगल हुआ, राइट, इसका कुछ ना कुछ स्लोप है, डेफिनेटली सर इसका स्लोप है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट यूनिफॉर्म रेट वी कैन से, और कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है इसकी स्पीड, क्योंकि हम जैसे जैसे सेकेंड्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड भी 1 मीटर पर सेकेंड के फैक्टर से इंक्रीज होते जा रही है। तो ये कांस्टेंट इंक्रीज है, यूनिफॉर्म इंक्रीज है, इंक्रीज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पॉइंट हमको क्या डेसिफर करना है, क्या इन्फर करना है, वो ये कि ये जो पॉइंट्स है जो हमें शो कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, प्लस वो कौन से रेट पे इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या फिर एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है। नंबर टू यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये किस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है। ऑब्वियसली ये तब हो सकता है जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो बाइक से, स्कूटर से, सो यू कैन सी, या फिर तुम खुद फील कर सकते हो कि जब तुम एक्सेलरेटर दबाते हो या फिर यूज करते हो तब तुम्हारी जो स्पीड है वो जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है, ये वो स्टेट बता रहे हैं। जब तुम क्या कर सकते हो, एक्सेलरेटर तुमने ऑन किया है, वैसे ही तुम्हारी स्पीड अचानक से इंक्रीज होने लग जाती है। दिस शोज दैट थिंग। ठीक है, जब हमने वो कांस्टेंट स्पीड वाला पढ़ा था तब तो क्या था कि हम लोग मूव कर रहे हैं लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द स्पीड, यानी कि हम कोई एक्सेलरेटर यूज नहीं कर रहे हैं तब उस दौरान। ठीक है, बट इस टाइम पे हमने एक्सेलरेशन किया है बिकॉज हमने जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से हमारी स्पीड पहले जीरो थी, हम रुके हुए थे, वी आर एट रेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही जीरो से हमने स्टार्ट किया, हम जीरो से लेके 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स हम चले गए हैं। दैट मीन्स हमने वहाँ पे एक्सेलरेशन यूज किया है, दैट मीन्स हमने स्पीड को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट में आता है, वो क्या है, एक्सेलरेशन। नाउ सी, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग ऑफ स्पीड। ठीक है, जब कभी भी स्पीड चेंज होगी तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, आइदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आइदर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमें देखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमें कैसे मिलता है। सो लेट्स कैलकुलेट इट स्लोप। इंपॉर्टेंटली हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई स्लोप क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ का। ठीक है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो ऊपर क्या लिखेंगे, पहले हम ऊपर लिखेंगे स्पीड, बिकॉज वाई एक्सिस पे कौन है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है स्पीड, तो सबसे ऊपर आएगा स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन, राइट, कि इस वक्त कितना एक्सेलरेट मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे ये डेसिफर कर सकते हैं दैट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, दिस ग्राफ शोज
एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये हमें ग्राफ बताता है एक्सेलरेटेड मोशन मतलब हमारा उस वक्त जो मोशन है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। दिस इज शोज व्हाट द एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज कि तुमको जब कभी भी स्लोप कैलकुलेट करना होगा, कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ का, यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मिल रहा है, लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन हियर। यहाँ पे अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल सी टू स्मॉल सी डबल स्मॉल सी वी कैन से, एंड देन अ स्मॉल एन इन दी पावर। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं और फिर आगे क्या लिखेंगे, हम देखेंगे स्पीड कितना है, स्पीड कितना इंक्रीज हुआ 0 से लेके 5, देखो यहाँ फाइनल तक 0 से लेके 5, तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, हाईएस्ट है ना, तो हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0 से 5 हुआ तो 5 चेंज हुआ, फिर इसी तरह टाइम भी 0 से 5 हुआ तो 5 सेकेंड्स हमारा चेंज हुआ, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 सेकेंड से, तो हमें मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सी दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यू मस्ट नो इट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन बहुत काम आएगा क्योंकि हम फोर्स पढ़ेंगे तो भी है वहां पे काम आएगा, और वैसे भी हर जगह काम आता ही है, ठीक है। नाउ सी, अब आपको पता चल चुका है कि आप क्या कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से आप इजीली एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस। क्या आप इस तरीके के ग्राफ से, स्पीड टाइम ग्राफ से किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं? यस, यू कैन डू दैट। नाउ सी, डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है और ये वाली जो टाइम एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया कवर्ड होता है दैट इज डिस्टेंस, वो आपको डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो हमारे पास जगह नहीं बची है पर फिर भी हम कर लेते हैं। नाउ सी ब्लू, अब देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको एक बड़ा सा ट्रायंगल मानूं, कौन सा ट्रायंगल, जिसमें ग्रीन कलर का लाइन है, ये व्हाइट कलर की लाइन है, एंड दिस इज दी टाइम एक्सिस, ठीक है। इसके बीच का जो भी एरिया होगा दैट विल बी डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया होगा वो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 to 5, दैट मीन्स 5, तो बेस इज 5 इंटू व्हाट इज इट्स हाइट, हाइट है 0 to 5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी हाइट 5, तो वी आर राइटिंग 5, दैट मीन्स 25/2, and that will give you how much, 12.5. This is the distance covered, 12.5 is the distance covered during this whole journey. During the 5 seconds that body covered 12.5 meters. all right, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब नाउ मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा एरिया आपको ऑलवेज लेना है, आपको लेना है ये ग्रीन से लेके टाइम एक्सिस के बीच में, जो मैं आपको रेड कलर से बता रही हूँ, ये जो एरिया है दैट यू नीड टू कैलकुलेट whenever you want to find out the distance covered of a body, whenever you have given the always the speed time graph। जब भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स इस ग्रीन लाइन के अंडर द कर्व, area between the green line and this time axis will give you the distance, and the slope of this green line will give you what, the acceleration। all right, now let's move on to the next graph, the only graph we have remain, this thing। जब कभी भी बॉडी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, जब कभी भी बॉडी का स्पीड डिक्रीज होने लगता है उस वक्त क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या डिस्टेंस कवर्ड होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन क्या कह रही है, लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो बॉडी, जब हमने t इक्वल्स टू 0 पे कंसीडर किया है तब बॉडी के पास ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, ठीक है, मतलब ऑलरेडी बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, ठीक है।
फिर जैसे ही 1 सेकेंड हुआ वैसे ही 5 से डिक्रीज होकर उसका स्पीड बन गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर जैसे ही 2 सेकेंड हुआ टाइम, वैसे ही उसका स्पीड डिक्रीज होकर कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। फिर जैसे ही टाइम 3 सेकेंड हुआ, उसका स्पीड वापस से डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। एंड देन जब 4 सेकेंड टाइम हुआ तो वापस से उसका स्पीड डिक्रीज होकर क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब उसका जो स्पीड है वो जैसे ही 5 सेकेंड हुआ, स्पीड हो गया 0, बिल्कुल 0, दैट मीन्स बॉडी स्टॉप हो गया। जैसे ही स्पीड 0, बॉडी स्टॉप, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये सिनेरियो कैसा है, जब ऑलरेडी बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही थी और थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाती है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे ब्रेक सप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन है लेकिन आपने यहाँ पे ब्रेक सप्लाई कर दिए है, दैट्स वाई स्पीड क्या हो रही है, धीरे 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 डिक्रीज हो जाती है। जब कभी भी ऐसा आपको देखने मिलता है, जब कभी भी आपको पता चलता है व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी decreases, then there is what? There is negative acceleration. ऑलराइट, जब कभी भी बॉडी का स्पीड डिक्रीज होता है तो वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डेसिलरेशन, ठीक है। आइदर हम उसे कह दें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर हम उसे कह दें डेसिलरेशन हो रहा है, ठीक है। दीज बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ पर हमें ये इंपॉर्टेंटली रखना है दिमाग में कि जब कभी भी स्पीड इंक्रीज होती है वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होती है तो वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि डेसिलरेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग जब कभी भी ब्रेक सप्लाई करते हैं तो वहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स डेसिलरेशन, स्पीड डिक्रीज हो रही है, धीरे 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 हम स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एक्सेलरेटेड दबा दें, है ना, अपना स्पीड इंक्रीज कर दे, तो फिर वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा जो कि आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है क्या वो सचमुच में नेगेटिव है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्लोप, जो कि हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि जब कभी भी ब्रेक सप्लाई होते हैं, जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होती है, वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हमें क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप के लिए हम सबसे पहले ऊपर यानी न्यूमरेटर में हम क्या देखते हैं, वाई एक्सिस के लिए देखते हैं। नाउ सी, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, 5 to 0 जा रहा है वैल्यू, है ना, पहले 5 था फिर लास्ट में 0 हो गया, तो वाई एक्सिस की वैल्यू 5 to 0 हो गई, दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोलेंगे, 0 minus 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ पे क्या है 0 और इनिशियल यानी पहले वाली स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर क्या थी 5, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट 0 minus 5। और टाइम देखो कैसे हो रहा है, टाइम 0 से 5 ही हो रहा है, टाइम इंक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है टाइम की 5 और इनिशियल वैल्यू 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5/5, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज योर एक्सेलरेशन, दैट मीन्स योर स्लोप। तो यहाँ पे जो स्लोप है आपको कैलकुलेटेड स्लोप जो मिला है वो आपको मिला है नेगेटिव, जिससे हमें पता चला है कि जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होती है सो वी गेट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हम इसका एरिया अंडर द कवर भी देख लेते हैं, अंडर द कर्व देख लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो डिस्टेंस है ड्यूरिंग दिस जर्नी, ड्यूरिंग दीज 5 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो वापस से क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से एक ट्रायंगल बन रहा है और वी कैन से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 0 to 5, 5 है इसका बेस, ऑलराइट, एंड जो इसका हाइट है वो भी कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी हम 5 लिख देते हैं। तो अगेन हमें क्या मिल रहा है 12.5 मीटर।
अब तुम लोग बोलोगे कि भाई आपने जो ये निकाला है डिस्टेंस, वो नेगेटिव क्यों नहीं निकाला? वो इसलिए है बेटा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी की लेंथ नेगेटिव में कैसे लोगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस जरूर, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जरूर नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बिकॉज वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने अब तुम्हें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बेसिस पे होता है, तो तुम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा, अगर तुम नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। बट अगर तुम डिस्टेंस की बात करते हो दैन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं बॉडी कब डेसिलरेट हो रही है, कब एसिलरेट हो रही है, आप बता सकते हैं कब बॉडी में जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है, कब उनको नेगेटिव एसिलरेशन वहाँ पे है, कब पॉजिटिव एसिलरेशन वहाँ पे है। तो आप ये पूरा होल इन्फॉर्मेशन किससे निकाल सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। चलिए अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप साथ साथ करते चलेंगे, बिल्कुल हमने जो भी पढ़ा है वो सारी नॉलेज इस क्वेश्चन में आ जानी चाहिए, ओके। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in first 5 seconds and acceleration of body, मुझे पूरा लिख देना चाहिए, acceleration of body during लास्ट 3 सेकेंड्स। तो मतलब यहाँ पे आपको स्पीड टाइम ग्राफ तो मैं दे दूंगी, अब आपको पता करना है कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस और कितना एक्सेलरेशन बॉडी का है, ठीक है। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ जो कि मैं बनाने वाली हूँ। वी शुड ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। आपको जो है इस तरीके का ग्राफ मिला है, दिस पॉइंट इज 5, ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर वी कैन से 2, 4, ठीक है। उसके बाद दिस इज 4, this is 4, 5, 6, 7, 8 seconds, ठीक है। दिस इज 8 seconds। तो अब आपको क्या करना है, 1 and 3, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस भी आपको स्पेसिफिकली फर्स्ट 5 सेकेंड्स के निकालना है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो आपको ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेकेंड्स के लिए निकालना है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो हम इसको डील कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, डेफिनेट सी बात है, तो ठीक है हम इसे पार्ट वाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब कभी भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, कि जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ का जो कर्व है और टाइम एक्सिस है उसके बीच में जो एरिया कैलकुलेट होगा दैट विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए इसको देखें तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन हियर,
ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये जो एरिया मिल रहा है, दिस एरिया विल गिव व्हाट, दिस एरिया विल गिव अस द डिस्टेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी है, डेफिनेट सी बात है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया तो सभी बच्चों को आता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो कितना होगा, 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25 मीटर, मीटर पर सेकेंड है, दैट्स वाई इट विल बी 25 मीटर। ऑलराइट, सो दिस इज 5 इंटू 5 वी कैन से। अगर आप यूनिट्स के लिए भी यहाँ देखना चाहेंगे तो मैं इसको इजीली यूनिट्स के लिए भी सॉल्व कर सकती हूँ, अगर किसी को यूनिट्स में प्रॉब्लम हो तो। देखो 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 सेकेंड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो सेकेंड है, दिस सेकेंड विल बी कैंसिल आउट बाय दी सेकेंड्स इन दी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 25 मीटर बच जाएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले सेकेंड से न्यूमरेटर वाला सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली 25 मीटर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो फिर क्या होगा, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेकेंड्स, और लास्ट 3 सेकेंड्स कौन से हैं, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ये है लास्ट के 3 सेकेंड। दैट मीन्स लास्ट के 3 सेकेंड्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है इसका स्लोप, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन मिलता है स्लोप से। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द स्लोप। सो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 सेकेंड, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, वाई एक्सिस में चेंज, यानी कि स्पीड में कैसे चेंज हुआ। स्पीड का इनिशियल वैल्यू क्या था, 5 है ना, स्पीड का इनिशियल वैल्यू यहाँ 5 है, और फाइनल वैल्यू यहाँ स्पीड का क्या है, 0, दैट मीन्स 0, यानी कि 5 0 माइनस 5। ऐसा क्यों किया हमने किया है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितना था, 0, और इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, 5, दैट मीन्स 0 माइनस 5। अब अगेन हम यहाँ देखते हैं टाइम के लिए क्या हो रहा है, 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम, कितना हो रहा है, 8 to 5। यहाँ पे कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे वापस से इनिशियल और फाइनल वैल्यू देखेंगे, वो कैसे, स्टार्टिंग यहाँ से थी, इनिशियल वैल्यू यहाँ 5 थी और फाइनल वैल्यू यहाँ पर 8 थी, और हम हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब हम फाइनल लिखेंगे तो फाइनल विल बी 8, इनिशियल विल बी 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 5/3, दैट मीन्स -5/3 विल गिव यू व्हाट, दी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चाहे तो तुम डेसिमल में भी देख सकते हो, और सिंपली अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट व्हाट, द एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे तुम ऑलरेडी देख सकते हो नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन आने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर नेगेटिव साइन आने का मतलब हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब ब्रेक्स लगे हैं और थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो आप फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, और वो है ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे। सी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पर्सन मूविंग इज शोन। ये स्पीड टाइम ग्राफ एक पर्सन का दिखा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम इन लास्ट 3 सेकेंड्स। लास्ट 3 सेकेंड्स के अंदर हमको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और आपको ऑलरेडी पता है जब कभी भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किससे, स्पीड टाइम ग्राफ से, तो आपको क्या करना होता है, ऑल यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स द कर्व एंड द टाइम एक्सिस, और इनके बीच में जो भी कर्व है, जो भी एरिया है, दैट्स यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ सी, यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि लास्ट 3 सेकेंड्स कितने हैं। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट 3 सेकेंड, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम, यहाँ पे देख लेते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड,
from 2 seconds to 5 seconds. These are the last 3 seconds, right? Now see, if these are the last 3 seconds, that means you have to calculate that much area. You have to calculate this area. All right, and this area is a trapezoid, I think, है ना? तो ये एक ट्रेपेजॉइड का एरिया है. ऑब्वियसली अगर तुम्हें इसका एरिया नहीं पता है या फिर ऐसा कोई शेप है जो बहुत डिफिकल्ट है, तुम नहीं इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ब्रेक दैट शेप. यहाँ पे हम कैसे ब्रेक करेंगे, लेट मी शो यू. हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ से इसे कैलकुलेट करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बना है 2 to 3 सेकेंड वाला हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, और 3 to 5 वाला हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा. तो इजीली हम दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करके, दोनों का एरिया कैलकुलेट करके बाद में ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसे नाम दे देते हैं सेकेंड. तो डिस्टेंस कवर्ड in last 3 seconds equals to area of first plus area of second. ठीक है, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकेंड का एरिया आपको डिस्टेंस दे देगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वाले का एरिया कैलकुलेट करना है जो कि एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया हमको कैलकुलेट करना आता है और वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. दैट मीन्स 2 से 3 यानी कि 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1. एंड दिस इज द हाइट जो कि कहाँ से जा रही है, 0 से 2 जा रही है. दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है वो है 2, वी कैन से. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली 1 into 2. ठीक है, डायरेक्टली 1 into 2 लिख देंगे. प्लस अब जो एरिया है वो एक ट्रायंगल का एरिया है. ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट्स के साथ भी लिख देती हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो. तो लेट्स राइट इट विद यूनिट्स. ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड. प्लस अब जो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें देखेंगे फाइनल वैल्यू तो 0 है स्पीड की, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 2. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट विल गिव यू व्हाट, 2. मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 3 to 5 सेकेंड्स है, 3 to 5 सेकेंड्स है, दैट विल गिव यू 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पे यूनिट लिखना जो है भूल गए. सी 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड. ऑल राइट, नाउ सी 1 सेकेंड इन द न्यूमरेटर, 1 सेकेंड इन द डिनोमिनेटर, दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू राइट ओनली 2 मीटर. प्लस नाउ सी दिस 1 2 is cancelled out by the other 2, only 2 is remaining, so you will be getting again 2 meter. So this is the thing, you will be getting 4 meter. This is the distance covered by the body in the last 3 seconds. So whenever you get a very complex shape, ठीक है, जब कभी भी आपको एरिया के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप दी जाती है तो यू जस्ट ब्रेक डाउन दैट शेप into the known shapes. ठीक है, obviously triangle, rectangle, square, these are the shapes which are known to us obviously. सो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो नोट इट डाउन, राइट इट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. All right, so this is the all thing about the graphs, all about the mathematical tools we should study before starting physics for class 8. All right, these are the things which are very beneficial. आपको बार बार अलग अलग चैप्टर्स में, कभी फोर्स के चैप्टर में, कभी प्रेशर के चैप्टर में,
ठीक है, बहुत सारे ग्राफ्स आपको देखने होंगे, आपको डील करने होंगे, और ये सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ ही नहीं होंगे, और भी बहुत तरीके के ग्राफ्स होंगे। ठीक है, सो इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और सेकेंड थिंग कि आपको हर एक ग्राफ का इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि एक स्टेप आगे है। ठीक है, आप स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जो कि एक स्टेप आगे है। एंड आप एक पीछे स्टेप भी जा सकते हैं, जो कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत मतलब वी कैन से वेरी क्रूशियल थिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ये है डिस्टेंस, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसी के ऑलमोस्ट इक्वल हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। दीज आर टोटली सेम थिंग बट वन हैज डायरेक्शन एंड अदर इज नॉट। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीड, वेलोसिटी एंड देन आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर जैसे ये ग्राफ्स आपको दिए हैं, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप यूज करेंगे। ठीक है, आपको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट स्लोप। ठीक है, फिर अगेन अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ से और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको वापस से इसका स्लोप कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो व्हाट यू विल बी कैलकुलेटिंग स्लोप एंड यू विल बी गेटिंग स्पीड और दी वेलोसिटी। और अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो आपको क्या करना होगा, स्लोप कैलकुलेट करना होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि जब कभी भी आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो और आपको कैलकुलेट करना हो स्पीड या वेलोसिटी, तो आपको क्या करना होगा, आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा एरिया। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आप कैलकुलेट कीजिए, यू विल बी गेटिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ से चाहिए होगा डिस्टेंस, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, हमने स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। ठीक है, या फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें वापस से आना होगा। जब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आप इस डायग्राम को बना लेते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अभी के अभी अपनी कॉपीज में बना लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अगर आप ये याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको उसके बाद कोई दिक्कत की बात ही नहीं रह जाएगी, आप इजीली इस चीज से कैलकुलेट कर पाएंगे। सी देखिए, अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको एक स्टेप हायर जाना है, ठीक है, एक स्टेप अबव क्वांटिटी पे जाना है, तो वहां पे आपको क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से स्पीड या वेलोसिटी चाहिए तो जंप करेंगे आगे, फॉरवर्ड जाएंगे तो स्लोप। ठीक है, और स्पीड वेलोसिटी चाहिए तो हम जंप करेंगे आगे जाएंगे, वी नीड स्लोप फॉर द एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी भी अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चाहिए तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। इस ग्राफ से आप इजीली हर एक ग्राफ को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी नेसेसरी पूछा गया है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये जो कर्व्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, ये आपको हर एक क्लास में आगे मिलेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 8, डेफिनेटली आपको 9, 10 और आगे आने वाली सभी क्लासेस में ग्राफ्स तो इंपॉर्टेंटली होंगे ही होंगे। So these are the basics of the graph. You must know about them, write them down, revise them daily. All right, practice hard ताकि आप different questions को कर सके. All right, so this is it. And we have covered what? We have covered scalars and vectors. We have covered trigonometric functions and functions. All right, and we have covered the graph section. So these are the basic mathematical tools every student must know if they want to excel in physics, obviously. Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it,
and do spread it out to everyone. Do not forget to click on the bell icon so that you will be notified for our upcoming videos. And this is a very much crucial time. All right, you can study hard, you can make yourself stand out, you can make yourself a very strong person in any subject. All right, do like it, share it obviously, and thank you so much for watching the video.